Hey, hi guys, welcome to my channel Only 10th. So, today we will just continue the problem sets questions, and so let's begin with the question number 9. Okay, so I am gonna read out the question number 9 for you. Okay, the question number is the sum of two roots of a quadratic equation is just a moment is 5 and the sum of their cubes is 35. Find the equation. Okay, so let alpha and beta be the roots of the quadratic equation. Okay, so we have suppose alpha and beta are the roots of the quadratic equation. Okay, so what the question says, sum of the root is 5. So sum of the roots is means what? Alpha plus beta. If these are our roots, that is alpha and beta, then what will be the sum? That is alpha plus beta is how much? 5. Okay, so sum of their cube is 35. As per the second condition, sum of their cube, that is alpha cube plus beta cube, is how much? 35. Okay, so we know the formula, that is alpha cube plus beta cube, that is alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Okay, so this is the formula, that is this formula is of alpha plus beta the whole cube. So by rearranging, alpha cube plus beta cube is equals to this one. Okay, this formula we have also seen before. Okay, so as per the formula, we will substitute the values, that is alpha cube plus beta cube, that is 35 is given, then alpha plus beta, that is 5 is given. So 3 into alpha into beta in bracket alpha plus beta again 5. Okay, so 35 is equals to, this becomes 125 minus 3 5 is 15 alpha into beta. Okay, so alpha into beta is equals to 125 minus 35. How much it will be? So 15 into alpha beta is equals to 90. Okay, so alpha into beta is equals to 90 upon 15. This comes divide. So answer is 6. So alpha into beta, the answer is 6. Okay, therefore the required equation is, what is our required equation? We know this formula, that is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. So this we know, this standard formula for the equation. So we'll substitute the alpha plus beta and alpha into beta values and we will get it. Okay, so x square minus 5x plus 6 is equals to 0. So this is the required equation. Okay, okay, so now let's go on to our question number 10th. You can take the snapshot. Okay, so the question number 10th which we are going to see, this question is little bit of lengthy, we can say. Okay, and this is the really tough question, and we this question, मतलब ये क्वेश्चन जो हमें वो मजबूर कर देता है सोचने के लिए, एक ऐसा वाला क्वेश्चन है ये. तो वी विल सी दिस क्वेश्चन. सो मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ. फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट its roots are square of sum of roots and square of difference of the roots of equation, that is 2x square plus 2 into p plus q into x plus p square plus q square is equals to 0. ओके, सो हम इस क्वेश्चन को आप धीरे धीरे आराम से देखेंगे. सो वी विल जस्ट सी इट. ओके, so first of all, what we'll do, given quadratic equation is 2x square plus 2 into p plus q x plus p square plus q square is equals to 0. Okay, so from this हमें क्या मिलेगा? a is equals to how much? 2, b is equals to how much? 2p into q, c is equals to how much? p square plus q square. ठीक है, तो इससे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है क्या है? माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई यानी क्या होता है? 2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन 2 माइनस, सॉरी, तो ये 2 2 कट होके क्या आ जाएगा? माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा. ओके, सो वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की क्या आएगी? सी बाई ए. तो सी बाई हाउ मच? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2. ओके, सो it is given that roots of the equations are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square. That is, as per the question, it is given that its roots are square of sum of roots and square of difference of the roots. Okay, so square of sum of the roots and square of difference of the roots. Okay,
So now what we'll do, we will assume let alpha a and beta a be the roots of the equation. Okay, so what they're telling, this and this are the roots of the equation. Okay, so now what we'll do, we will assume alpha a is equals to alpha plus beta whole square and beta b is equals to alpha minus beta the whole square. ओके, मतलब इसके पहले हमें अल्फा इज इक्वल्स टू 3, बीटा इज इक्वल्स टू 4 जैसे दिया हुआ होता था, तो इस केस में वही है, अल्फा इज इक्वल्स टू जो 2 है, वो जो 2 और 4 जो वैल्यू है वो ये है. ओके, सो नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, बीटा ए इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू. ओके, सो द सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा is equals to अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. ठीक है, यहां तक हमें मिल गया. फिर अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमें इसे पहले एक्सपांड करना है. ठीक है, यहां से अगला स्टेप है एक्सपांड वाला. ठीक है, सो एक्सपांड करते समय अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा उसे रीअरेंज कर लिया. ठीक है, so alpha minus beta whole square is equals to what, alpha a plus beta a is minus a plus b the whole square का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे भी a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको भी मैंने एक्सपांड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में. ठीक है, तो ये फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस ये फॉर्मूला. ठीक है, माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये प्लस, जो प्लस साइन है वो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो ये माइनस से माइनस हो गया सब. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर लेंगे. मतलब ये अल्फा ए प्लस बीटा बी एक तरफ कर लेंगे, बाकी सब टर्म्स एक तरफ कर लेंगे. ठीक है, तो उसमें से 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो क्या बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ए प्लस बीटा ए. ठीक है, इन दोनों से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन आने पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा ए. ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. मतलब हमारा जो फॉर्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो उसमें से ए और बी को साथ में ले लिया और बाकी टर्म्स यहाँ पर शिफ्ट कर लिए. ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो इसको फॉर्मूला हम एक्सपांड करके कैसे आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, बस इसको हमने ये फॉर्मूले को इस तरह से लिख लिया रीअरेंज करके, इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा ए प्लस बीटा ए. ठीक है, सो इसको हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है. जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू पता है. हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता. अल्फा अलोन की वैल्यू पता है क्या, नहीं. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, नहीं. तो हमने इसलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा ए. ठीक है, तो माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या होगा इसका, पी प्लस क्यू दी होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया और जो नंबर है वो नंबर एज इट इज स्क्वायरिंग. मतलब -2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर. वैसे ही ठीक है, तो ये पी प्लस क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 2 कैंसिल होने के बाद में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा ए. ओके, सो नेक्स्ट इसको अभी हमें दोबारा से एक्सपांड करना है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. ठीक है,
ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई अंदर चला जाता है, तब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, सो ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट हो जाएगा। सो 2 इंटू टू इज 4pq इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी। ओके, तो हमें अल्फा ए प्लस बीटा बी यानी सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि है ये। ओके, सो नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा ए इंटू बीटा बी, सॉरी बीटा ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर। अभी हमें इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पहले हमें इन दोनों का सम निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया और फिर इसको एक्सपांड करके सॉल्व करके ये वैल्यू हमें मिल गई। अब दोनों का प्रोडक्ट्स करके इसको सॉल्व करके हमें अल्फा ए इंटू बीटा बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वो जो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर था, उसको हमने वापस एक्सपांड कर दिया इन फॉर्मूला के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ओके, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू होल दिस टर्म, टू अल्फा बीटा इंटू होल दिस टर्म, बीटा स्क्वायर इंटू होल दिस टर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे अल्फा रेज टू 4 माइनस टू अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम टू अल्फा बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर इज टू अल्फा क्यूब बीटा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, फिर बीटा को इससे ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा रेज टू 4। ठीक है, ये फॉर्म में आ जाएगा। फिर जब ये टू अल्फा स्क्वायर बीटा कट हो जाएगा, मतलब माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस टू अल्फा क्यूब बीटा ये कट हो जाएगा। फिर टू अल्फा बीटा क्यूब ये कट, माइनस टू अल्फा बीटा क्यूब ये कट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म जो बचता है वो है अल्फा रेज टू 4 प्लस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4। ओके, सो अब क्या होगा, ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मतलब 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4। ठीक है, अभी 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2। सो अल्फा रेज टू 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4। ठीक है, तो अब हमें यहाँ तक तो मिल चुका है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में अब ये हम क्या करेंगे, अल्फा रेज टू 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रेज टू 4, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे और अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसे बन गया। ठीक है, बस हमने ये दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, मतलब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दिया, मतलब इक्वेशन में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आफ्टर इस फॉर्म में लिखने के बाद सो ये वाला अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस फॉर्मूले में, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो इसमें ए क्या है अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बी क्या है अपना बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन जो कि है अभी आ चुका है। ठीक है, तो अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था। ठीक है, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसीलिए हमने वैसे उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, सो माइनस पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर। करेक्ट,
माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ये उसका कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करना है, इसको वापस दोबारा से एक्सपांड करना है ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। सो इसको एक्सपांड करने पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाने के बाद माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दी होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू ये स्क्वायर करने पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर रेज टू होल स्क्वायर अपॉन 4 तो कट हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अभी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी कट हो जाएगा। तो क्या रहेगा इसमें, ओके 2pq, ओके 2pq होल स्क्वायर रहेगा, बराबर 2pq होल स्क्वायर रहेगा। तो इसमें क्या फिर क्या हो जाएगा उसका 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दी होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास अभी इक्वेशन है, ठीक है। इस फॉर्म से स्क्वायर था इसलिए वो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ओके। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ये भी जो है अभी a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको भी एक्सपांड कर देंगे। सो p रेज टू 4 प्लस q रेज टू 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने पे फिर ये p रेज टू 4 ये q रेज टू 4 और ये 4 माइनस 2 हो जाता है प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 2 इज प्लस 2, करेक्ट। तो इसमें से पहले माइनस साइन फिर दोबारा से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने पे क्या हो जाएगा, p रेज टू 4 प्लस q रेज टू 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ओके। तो ये भी फॉर्मूला में हो गया। फॉर्मूला क्या बनता है अपना, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें a क्या है p स्क्वायर, b क्या है q स्क्वायर। सो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रेज टू ब्रैकेट होल स्क्वायर और ये माइनस साइन। सो अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच, माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रेज टू 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। गाइज ये वाला ही क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक बार मैं आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, मैंने कहाँ से क्या निकाला है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लगे तो इसका स्नैपशॉट भी आप निकाल लीजिए, 2-3 बार इसको सॉल्व कीजिए, इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है। और यहाँ पे बस याद रखना है कि इसमें हमें प्लस माइनस ये 2 टर्म्स करने हैं, तभी हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज मुकुंद possesses ₹50 more than what Sagar possesses. The product of the numbers of amount they have is ₹15,000. Find the amount each has. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, लेट सागर हैज ₹x पकड़ेंगे, क्योंकि हमें सागर की अमाउंट कितनी है पता नहीं है। बट मुकुंद के पास कितना है, मुकुंद के पास है ₹50 मोर देन व्हाट सागर हैज, ओके। सो सागर के पास x है तो इसके पास कितना रहेगा, मुकुंद के पास x प्लस 50 रहेगा, ओके, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द अमाउंट दे हैव इज ₹15,000, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 15,000 है, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन मिल गया, ठीक है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 टर्म्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो ये 2 पेयर बन गए हैं, तो ये 2 पेयर में से x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 150, ये 2 पेयर में से 100 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 150 अंदर आ गया, ठीक है। सो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस x प्लस 150, और जो कौन सा टर्म रिमेनिंग है वो x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सो x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 150 और x इज इक्वल्स टू 100, सॉरी x इज इक्वल्स टू माइनस 150 आएगा और x इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। बट अभी हमें पता है कि अमाउंट जो है, मनी जो है वो
कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो x माइनस 150 इज नॉट, इस कैनॉट बी एक्सेप्टेबल। सो वी कैन गो फर्दर विद x इज इक्वल्स टू ₹100। सो अगर x 100 है जो कि सागर की अमाउंट है, सो मुकुंद का कितना है x प्लस 50। सो 100 x प्लस 50 यानी 100 प्लस 50 यानी 150। सो सागर हैज ₹100 and Mukund has ₹150. Okay, so now let's move on to our question number 12. I'll read the question for you. The question कहता है the difference between the square of two numbers is 150. Okay, sorry, my bad, it's 120. The square of the smaller number is twice the greater number. Find the numbers. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैसे दिया गया है, तो हम क्या सपोज करते हैं, पहले लेट दी स्मॉलर नंबर बी एक्स। हमें पता नहीं है दोनों भी नंबर्स, तो हमें क्या किया, स्मॉलर नंबर को एक्स पकड़ लिया और ग्रेटर नंबर को वाई पकड़ लिया। ठीक है, एज पर द गिवन कंडीशन जो दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर 120। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 120। ओके, ऑल्सो सेकेंड कंडीशन क्या दी है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर क्या है, वाई, सो 2y। सिंपल। सो क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इक्वेशन 1 में डालेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पर 2y डाल देंगे तो 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 120 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 10y माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इस 2 को हमने स्प्लिट कर दिया माइनस 12 प्लस 10 के इसमें। ठीक है, तो ये जो दो पेयर बन गए। ठीक है, तो ये दो पेयर में से y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 12 प्लस 10, इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो y इज 12 और y इज माइनस 10। सो y माइनस 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट। सो y इज इक्वल्स टू 12 हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 12 हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 2 इंटू वाई, वाई क्या है 12, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24, प्लस माइनस अंडर रूट 24, करेक्ट। मतलब जो दो नंबर्स है वो कौन से है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 24। ओके गाइस, सो आप चाहो तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. Okay, so question number 13 says Ranjan on her birthday distributed 540 oranges equally among the students. If there would have been 30 students more, each would have received 3 oranges less. Find the number of students. Okay, so पहले तो हमें पता नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सो हम क्या करेंगे, लेट देयर बी एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, फिर देन ईच स्टूडेंट वुड गेट, मतलब ईच स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, अगर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मतलब कितने, 540 अपॉन एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 540 हुए, तो 540 अपॉन एक्स मतलब एक स्टूडेंट को उतना ऑरेंज जो है वो मिला है। ठीक है, सो स्टूडेंट हैज बीन इंक्रीज बाय 30, स्टूडेंट एक्स 30 से इंक्रीज हुए, मतलब क्या हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 30 लिखेंगे। ठीक है, सो देन ईच स्टूडेंट वुड गेट 540 अपॉन एक्स प्लस 30। जब 30 इंक्रीज करेंगे फिर ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा, दैट इज 540 अपॉन एक्स प्लस 30। ओके, और एज पर द गिवन कंडीशन जो कि दिया हुआ है, इफ देयर वुड हैव बी 30 स्टूडेंट्स मोर, ईच वुड हैव रिसीव्ड 3 ऑरेंजेस लेस। ठीक है, मतलब क्या होगा, 540 माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3 एज पर द गिवन कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा 540x प्लस 16200 माइनस 540x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, 16200 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 30x, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 16200 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 90x। सो अरेंज कर लेते हैं हम इसको, सो 3x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 16200 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैं A B C
मैं आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहा था, बट वो बहुत ही लेंथी हो जाता। सो इट्स बेटर कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करें। सो इसके हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसको हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 30 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x इज इक्वल्स टू 5400। ओके, सो दैट इज x इसमें से x कॉमन आ जाएगा। सो x प्लस 90 माइनस इसमें से 60 कॉमन आ जाएगा। सो 60 x प्लस 90 माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 90 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। फिर आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 90 एंड x इज इक्वल्स टू 60। अब हमें पता है x माइनस 90 कैनॉट बी एक्सेप्टेबल, so students cannot be negative, that is x equals to 60 is the answer. So number of students is 60. Okay, so now let's move on to question number 14. Okay, so now let's see our question number 14. Okay, question number 14, I'll read the question. Mr. Dinesh owns an agriculture farm at village Talwal. The length of the farm is 10 meters, more than twice the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and the pond. Okay, so हमने क्वेश्चन अभी देख लिया है, अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ दी लेट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी एक्स। जो फील्ड की जो ब्रेथ है वो तो हमें पता नहीं, तो उसको हम पहले एक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर द लेंथ ऑफ द फार्म, लेंथ ऑफ द फार्म कितना है, उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ये इसका लेंथ है। ठीक है, सो एरिया ऑफ द फील्ड, पता है एरिया हम कैसे नहीं निकालते, लेंथ इनटू ब्रेथ निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे किसका, रेक्टेंगुलर फॉर्मूला का। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल एरिया है तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 2x प्लस 10 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका एरिया। ऑल्सो ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड। अभी इन्होंने यहाँ पे बताया कि वो जो पॉन्ड है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, जिसके साइड कितने हैं, 1/3x, मतलब 1/3 ऑफ दी ब्रेथ ऑफ दी फील्ड, मतलब फार्म की। ठीक है, so area of the pond is how much, side square 1/3x the whole square. Okay, as per the given condition उन्होंने क्या बोला है, area of the farm is equals to 20 times area of the pond. ठीक है, so 2x plus 10x is equals to 2 into 1/3 1/3x the whole square. ठीक है, तो ये एज पर गिवन कंडीशन हमें लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। सो 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो x इज इक्वल्स टू 45। ब्रेथ ऑफ द फार्म, मतलब ये जो ब्रेथ है कितना है, 45 है। ओके, लेंथ ऑफ द फार्म कितनी है, सॉरी ब्रेथ यानी ये पार्ट होता है, सॉरी। ओके, सो लेंथ ऑफ द फार्म कितनी है, 2x प्लस 10, तो वो कितना आएगा, 90, 2x x यानी 45, सो 90 प्लस 10 दैट इज 100। ठीक है, साइड ऑफ द पॉइंट इज 1/3x। ओके, हमें पहले ही बताया गया था क्वेश्चन में, 1/3 ऑफ द ब्रेथ है। ठीक है, तो क्या आएगा, 1/3 इंटू एक्स इज वॉट 45 दैट इज 15 मीटर। ओके, तो इसे ये है सब हमारे जो ब्रेथ बताया गया था फार्म का और लेंथ ऑफ द फार्म, साइड ऑफ द पॉन्ड, ये है उसके आंसर्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Okay, a tank is filled completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at the given time, the smaller taps takes 3 hours more than the larger one to fill the tank.
हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? ओके, सो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है. सो सबसे पहले लेट द लार्जर टैप टेक x आवर्स. ओके, अभी लार्जर टैप अगर x आवर्स लेता है तो स्मॉलर टैप टेक्स x प्लस 3 आवर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 आवर्स मोर, सो x प्लस 3 आवर्स. ओके, अब हमें पता है, ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे कि एक घंटे में क्या होता है. ओके, सो इन 1 आवर द टैप विल टेक 1 upon x part, sorry, in 1 hour the larger tap will fill 1 upon x part of the tank. ठीक है, मतलब एक घंटे में वन अपॉन एक्स पार्ट ऑफ द टैंक वो जो है उसका बढ़ जाएगा. ठीक है, वैसे ही इन 1 hour द स्मॉलर टैप विल फिल 1 upon x plus 3 पार्ट ऑफ द टैंक. ठीक है, सो सिंस बोथ टुगेदर टेक्स 2 hours, जब बोथ टैप ओपन होते हैं तो उसको 2 घंटा लगता है. ठीक है, तो वो एक घंटे में कितना भरेगा? ऑब्वियसली अगर टैंक 2 घंटे में फुल होता है तो एक घंटे में उसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो 1 आवर में हाफ पार्ट विल बी फिल्ड. ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon x plus 1 upon x plus 3 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/2. फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और इक्वेशन हमें ये मिलेगा 2x प्लस 6x 2x प्लस 6 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा ये 3x माइनस 4x करते ही क्या माइनस करते क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे माइनस 3x और प्लस 2x के फॉर्म में. ठीक है, इस सॉल्व करते हमें x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा. इसमें से कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब क्या, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2. तो माइनस में तो अपना टाइम नहीं हो सकता है, सो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है. ठीक है, सो लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स while smaller taps takes x plus 3, that is 3 plus 3, that is 6 hours. Okay, so that's it guys. ये लास्ट के थोड़े जो सम्स है ये प्रॉब्लम सेट के वो थोड़े से डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सा इस पे हार्डवर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. ठीक है, आप अब इसे इस हर एक सम्स को कम से कम 2-3 बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपको आपके हाथ के नीचे से एक बार चला गया तो ये आपको इजी हो जाएगा जब आपको एग्जाम में आ जाएगा ये सम्स. ठीक है, तो that's it guys. If you find this video helpful, please give it a like and do share it with your friends. That's it for today. See you in the next video. Thank you. Bye.